Good morning everyone. Class 9, chapter number 7, triangles, exercise 7.1, and we are doing here congruency of triangles. So question number 4 is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. So we have parallel lines, L and M are parallel and P and Q are parallel lines, and AC is transversal of these lines, right? L and M are parallel, P and Q are parallel, AC is transversal, and we know angle ACB is equals to angle DAC because these two angles are alternate interior angles, right? And after that we know angle BAC is equals to angle ACD. This is also alternate interior angles, राइट अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स कॉमन आ गए और इनके बीच वाली साइड AC इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, राइट? सो AC इज इक्वल्स टू AC. द रीजन इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन बनता है एंगल साइड एंगल, राइट? सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल, राइट? This is proved. Now question number 5 is line L is bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that first triangle APB is congruent to triangle AQB, and second BP is equal to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. So here in this question फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें प्रूफ करना है कि APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है, राइट? हमें गिवन क्या है? फर्स्ट हमें गिवन है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. दिस L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इट मींस इट इज converting it into two equal parts. It means this angle is equal to this angle, right? So we have written BAP is equals to BAQ, right? The reason is L bisects angle A, which is given. After that BPA is equals to BQA. As I told you, this sign means this is 90 degree, this is 90 degree. Both angles are 90 degree in the both triangles, so it is given each 90 degree. Now this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and AB is common in both the triangles. AB यहाँ पर इस triangle में भी आ रही है, AB इस triangle में भी आ रही है. So AB is equal to AB. Reason is common. So it means this is angle side and angle side. So by angle side criterion of congruency, these two triangles are congruent. And after that BP is equals to BQ. The reason is CPCT, corresponding parts of congruent triangles are also equal, right? So our next question is, in sixth question we have in this figure AC is equals to AE, AB is equals to AD, and angle BAD is equals to angle EAC. Show that BC is equals to DE, right? So here is this question. In this question what we have given? We have given angle BAD, right? This angle BAD is equals to angle EAC. This angle, ये वाला एंगल के इक्वल है. Let me dark this area so you will be more clear, right? This angle is equal to this angle, right? ये एंगल हमें गिवन है दोनों में. अब दोनों में कॉमन क्या है? हमें चाहिए क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले ये देखो, हमें प्रूफ करना है कि BC, दिस लाइन BC इज इक्वल्स टू DE, दिस लाइन DE, राइट? अब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में ये वाली अगर DE और BC को इक्वल करना है तो हमें ये चाहिए ट्राइंगल कौन सी चाहिए? ABC एंड ADE, ये वाली ट्राइंगल चाहिए. और इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, राइट? एंगल DAC. हमने क्या किया? दोनों साइड DAC ऐड कर दिया. अगर हम यहाँ पर DAC ऐड करते हैं, राइट? अगर हमने ट्राइंगल ABC में, राइट, एंगल BAD में हमने ये DAC ऐड किया तो हमारे पास ये वाला एंगल आया, राइट? और फिर हमने EAC में सेम वही DAC ऐड किया तो हमारे पास ये वाला एंगल हो गया, राइट? अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हमें लेने हैं.
दो हमारे पास, अब ये देखो अगर जब हमने ये वाले एंगल्स ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया BAC। और अगर जब हमने इसमें ये वाले ट्रायंगल में ये ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये वाला एंगल बन गया EAD, ये बन गया, राइट। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हमने लेने हैं, एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी। अगर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABC एंड ADE यहाँ पर लिख लिया। और इसको लिखने का तरीका भी कैसे, क्योंकि दोनों में A एंगल कॉमन है, राइट, दोनों में A एंगल कॉमन था, A ऊपर लिख लिया। फिर उसके बाद हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AD, तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू AD आ गया। उसके बाद हमें गिवन है AC इज इक्वल्स टू AE, तो यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू AE आ गया, राइट। तो हमने मतलब इसका मतलब है हमने ट्राइंगल्स को सही तरीके से रखा है। अब हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया था, दिस इज वन, हमने प्रूफ कर दिया था कि BAC जो है वो DAE के इक्वल है, राइट, प्रूफ्ड अबव। यहाँ पे इसको नंबर 1 देके यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख दिया। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू AD गिवन, AC इज इक्वल्स टू AE गिवन। अब हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ क्या करना था कि BC इज इक्वल्स टू DE है। Of course, if two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. So by CPCT, BC is equals to DE, corresponding parts of congruent triangles, right? Hence, proved. So थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमें इसमें एंगल एक ऐड करना है, DAC ऐड करना है दोनों साइड पे। इस छोटे वाले एंगल में DAC ऐड किया, ये बड़ा वाला एंगल बन गया। इस छोटे वाले एंगल में DAC ऐड किया तो ये बड़ा वाला एंगल बन गया, राइट। So next question is, AB is the line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD is equals to BE. So how we will do the sum? First of all, if in any question, remember that if in any question it is given which two triangles we have to prove congruent, right? In this question हमें पहले given है कि हमने कौन सी दो triangles लेनी है जिसे congruent prove करना है। हमने लेनी है DPA and EPB, ठीक है, हमने ये दो triangles लेनी है। अब सबसे पहले हमें given था this angle is equal to this angle, it means angle in angle EPA and DPB are equal, these two are equal, and we know in both those triangles this is, if we will add this then it will complete angle। अगर ये वाले ट्राइंगल में इससे हमने, जैसे कि if I will mark this, see, अगर यहाँ पर ये है और हमें ये वाले ट्राइंगल चाहिए, अगर हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, right? And similarly if we will add in this triangle we will add this, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ this, right? तो ये वाली ट्रायंगल अलग हो जाएगी, ये वाली ट्रायंगल अलग हो जाएगी। so हमने अगर इस EPD को ऐड कर दिया, राइट, EPD को ऐड कर दिया दोनों साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या बन गया, एंगल APD, दिस एंगल, राइट। और अगर इस एंगल में हमने ये वाला ऐड कर दिया EPD, तो ये बन गया EPB, राइट, या DPE भी कह सकते हैं इसको, ये वाला बन गया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में मैंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना दिया, राइट, जैसे कि इस ट्राइंगल को अलग शो कर दिया, इस ट्राइंगल को अलग शो कर दिया। और फिर हमारे पास व्हाट इज गिवन, हमारे पास क्या गिवन था, अब हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, फ्रॉम स्टार, मैंने इसे स्टार दे दिया है, फ्रॉम स्टार ये प्रूफ है। उसके बाद एंगल PAD is equals to PBE, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है कि BAD इज इक्वल्स टू ABE, मतलब कि हमने यहाँ पर BAD की जगह हमने क्या लिख लिया, PAD, राइट, एंड ABE की जगह हमने लिख लिया PBE।
ठीक है, तो मतलब कि हमें शो तो यही एंगल को करना है, इन दो एंगल्स को करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PAD इज इक्वल्स टू PBE, राइट। आफ्टर दैट हमें गिवन था कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, सो इट मीन्स हमारे पास ये पहले ही है कि AP जो है वो PB के इक्वल है, राइट। तो मैंने ये दो अलग ट्राइंगल्स बना ली, उसके हिसाब से दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड एंड दीज टू साइड्स प्रूव्ड, मतलब हमारे रीजन अलग अलग हैं, सारे रीजन जरूर लिखने हैं। ये हमने प्रूव किया यहाँ पे, इसमें हमें गिवन ही था, ठीक है। और नेक्स्ट में P इज अ मिड पॉइंट, दैट्स वाई इक्वल। दस हम क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सी क्रिटेरियन है, एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल क्रिटेरियन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल्सो वी नो AD is also equals to EB. The reason is AD is equals to EB or BE, we can say. The reason is typicity by congruent corresponding sides of congruent triangles, right? So बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, and if you have any query you can ask, and I think these 4 questions are enough for today. And if you want to see previous video or if you want to see next videos, you can subscribe my channel Mathematics Prashar, right? Thank you so much.